السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہنس کی گونج۔ ہم موجود ہیں اس وقت سرزمین دکن برار شہر بالاپور اکولا ضلع مہاراشٹر میں۔ آپ میرے ہاتھ میں یہ کتاب دیکھ رہے ہیں، اس کتاب کا نام ہے برار انڈر دا مغلز۔ آپ میرے پیچھے یہ مسجد دیکھ رہے ہیں، اس مسجد پر میں نے ایک ایپیسوڈ پہلے بنایا ہوں۔ اس مسجد کے اندر 3 کتبے ہمیں نظر آتے ہیں۔ پہلے کتبے میں مغلیہ سلطنت کے 17ویں بادشاہ شاہ عالم ثانی کا نام ہمیں نظر آتا ہے، اور دوسرے کتبے میں ہمیں حضرت سید جلال شاہ صاحب کا نام نظر آتا ہے۔ یہ مسجد حضرت سید جلال شاہ صاحب نے تعمیر کروائی تھی 1773 میں، اور بہت سی باتیں ادھوری رہ گئی تھی پچھلے ایپیسوڈ میں۔ اس ایپیسوڈ کے اندر ہم ان ساری باتوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ ہمارے ساتھ میں بنے ہیں اس ویڈیو کے اندر جاوید خان رضا صاحب۔ چلیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں، وہ ہمیں بہت ساری جانکاری بتائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جیسے جاوید صاحب، ہم نے پہلے ویڈیو بنائے تھے جس میں بہت ساری باتیں ادھوری رہ چکی تھی، مگر اس ایپیسوڈ کے اندر آپ کے ذریعے، اس چینل کے ذریعے بہت سے لوگوں کو جانکاری لوگوں تک کی جائیں گی۔ تو آپ کیا جانتے ہیں اس مسجد کے بارے میں؟ یہ مسجد جو ہے ادھر دیکھیں۔ بابا سید جلال الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اچھا، آپ نے تعمیر فرمائی تھی۔ آپ کے مزار اقدس جو ہے تو یہیں قبرستان میں ہے، اچھا، اسے بیرون کہا جاتا ہے۔ تو حضرت کی مزار مبارک پہ بھی آپ کو لے چلیں گے، مگر یہ اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی اور کامل ولی گزرے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ بالاپور میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو علاقہ ہے تو یہ علاقے میں یہاں بستی ہوا کرتی تھی، اچھا، بادشاہ پورا ہوا کرتا، یعنی علاقہ ہوا کرتا تھا، تو اس کا نام ہے بادشاہ پورا۔ تو یہ حضرت جو ہے تو یہاں قیام گاہ تھی، آپ کی خانگاہ مشہور قائم تھی، لوگ یہاں سے فیض حاصل کیا کرتے تھے۔ تو حضرت کے وصال مبارک سے تقریباً حضرت کو 250 سال کے لگ بھگ میں ہو چکا ہے۔ تو وہاں 4 بزرگ ہیں، 4 بزرگوں کے بارگاہ میں آپ کو لے چلیں گے، تو آپ چلے وہاں۔ چلیے ہم چلتے ہیں وہاں پر، چلیے۔ دیکھیے، یہ مقدس جگہ جہاں پر یہاں کے بزرگان دین آرام فرما ہے۔ دراصل یہ جو علاقہ ہے من ندی اور مہیش ندی کا یہ سنگم ہے۔ میں کیمرہ مین کو کہوں گا قریب آ کر دکھائیں۔ دیکھیے، جاوید خان رضا صاحب ہمارے ساتھ میں موجود ہیں، وہ ان بزرگان دین کے تعلق سے جانکاری آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ نے جو مسجد کا نام دیکھا ہے سید جلال الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سلسلہ چشت کے بزرگ تھے؟ سلسلہ چشت کے بزرگ ہیں آپ۔ تو سرکار سید جلال شاہ علیہ رحمۃ رضوان کی مزار مقدس یہ ہے، یہ بیچ والی، ہاں یہ مزار مقدس ہے آپ کی، اور آپ کے 2 خادم تھے، یعنی آپ کے 2 خدمت گزار اور 2 خلیفہ تھے آپ کے۔ تو آپ کے سب سے اول اور نائب خادموں کے اندر سرکار بادشاہ صاحب علیہ رحمۃ رضوان موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ بادشاہ سرکار ہیں، اچھا، انہیں وقت کے بادشاہ تھے۔ تو آپ کی خدمت میں یعنی غلامی میں جب اولیاء اکرام کی بزرگان دین کی بارگاہ میں جو آتا ہے تو بادشاہت چھوڑ کے فقیری لباس میں جی بے شک ہوتا ہے۔
बादशाह साहब के शहजादे हैं गुलाम मोहिनुद्दीन साहब। गुलाम मोहिनुद्दीन साहब। हाँ, तीसरे हजरत के शहजादे हैं। और ये हमारे यानी हजरत की 5वीं पुस्त के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़कीर हूँ। हजरत इमाम खान अलैहि रहमत रिजवान, जिसको तकरीबन आज से 200 साल पहले आपका विसाल मुबारक हुआ है। तो हजरत इमाम खान अलैहि रहमत रिजवान जो है तो सैयद जलालुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुरीद और खलीफा है। अच्छा, इनके खलीफा हजरत इमाम। हाँ, अच्छा अच्छा बादशाह सरकार भी आपके खलीफा हैं अच्छा। और ये भी खलीफा आपके हैं। हाँ तो ये दोनों जो हैं हजरत के मामलात इतने बुलंद थे, आज भी यानी बरार के अंदर देखा जाए या बाहर भी लोगों ने देखा है, जो नहर है, नहर का 2 संगम होता है यहाँ। अच्छा। हाँ यहाँ नहर का संगम होता है। तो आपके मामलात ये थे कि हम तो बुजुर्गों के बता नहीं सकते, मगर बेशुमार करामत हजरत की है। मगर उसमें से एक छोटी सी करामत हजरत की, जो आपका मामला ये था कि रोज़ रात को आप आपके पेट को चिरते थे। आप रोज़ अपने यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कैसी यानी गुलामी पेश करो। आप रोज़ रात को पेट को चीरा करते थे और उसको आपका जो मैदा है यानी आपके जो वगाल है यानी पूरा बाहर पानी में निकाल के उसे रोज़ साफ किया करते थे। और रात में वापस दाखिल करने के बाद हाथ घुमाते थे तो जैसी की वैसे आपका कुछ हो जाएगा। अच्छा। ये बेशुमार करामत है। कई लोगों ने आपको देखा भी है और हमारे किस्मत के अंदर हमारे दादा जान आपके साथ में मौजूद हुआ। मतलब इनके विसाल को कितने साल हो गए? इनकी तकरीबन मिसाल को 250 साल के लगभग में हो चुका है। हमारे दादा जान को जो है तो 200 साल के लगभग में हो चुका है। हजरत को 200 साल में, उनको 100 साल के लगभग में हो चुका है। अच्छा। तकरीबन ऐसे हजरत बुजुर्गों के जो बाटियाँ है 2002 के पूर्व के अंदर रह चुकी है। जहाँ तक मैंने बुजुर्गों से सुना है, पढ़ा है कि शहर बालापुर 3 बार तबाह हो चुका है, बड़े बड़े सैलाबों से गुजर चुका है। ये बालापुर की तारीफ है जो लोग नहीं जानते हैं और लोगों ने बहुत नज़रअंदाज किया है। हम मौजूद हैं यहाँ पर में शहर बालापुर, जहाँ पर में पहले बस्ती हुआ करती थी। इतनी प्यारी जानकारी मुझे भी नहीं पता थी जितनी जावेद भाई ने हमें बताई है। और कुछ आप बताना चाहते हो तो आप बता सकते हैं। हमारे दादा जान की जो करामत है, जैसा मुर्शिद से जो निस्बत अपने मुरीद को होती है, हाँ। तो आपने सुना है हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वाक़िया है कि आप पानी पे चला करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बालापुर की सरजमी पे ऐसे वली कामिल जो गुजरे हैं, जो जिसमें बेशुमार करामतें जो हमारे दादा जान इमाम खान अलैहि रहमत रिजवान की आती है। अच्छा। तो आपके मुर्शिद करीम यहाँ नहर के पास खड़े रहते। एक बार का मामला यह है कि सैलाब आया हुआ है। अच्छा। आपने खिदमत में हाजिर किए कि इमाम खान हमारी खिदमत के लिए पहुँचो। तो आप घर पे आराम फरमा रहे थे, तो आप वहाँ पहुँचे। आपने इरशाद फरमाया कि जी सरकार हम पहुँच रहे हैं। तो जो देखा कि नहर बह रही है, तो आपने फरमाया हजरत मैं कैसे आ सकता हूँ, इसलिए कि नहर बह रही है यानी पानी का सैलाब है। हाँ। तो आपने फरमाया आप कदम तो रखो, हम यहाँ खड़े हुए, हमारी निगाह में निगाह मिलाओ। आपको आवाज़ आई, आपने पानी पे कदम रखा। तो इस तरह पानी पे आपने कदमों चल के पानी पे चलकर आपके मुर्शिद करीम की बारगाह में पहुँचे। तो अल्लाह के वलियों की बारगाह में जब फैज़ हासिल होता है तो फिर वो पानी को भी ज़मीन बना लेते हैं। जैसे आपने एक बात का जिक्र किया है कि नहर, जहाँ तक कि मैंने बुजुर्गों से सुना है कि इस मस्जिद को नहरी मस्जिद भी कहा गया है, जी। बादशाहपुरा मस्जिद भी कहा गया है और साड़नीपुरा भी कहा गया है। तो जो नहर का जिक्र आपने किए तो उसके बारे में बताइए। जो नहर है यहाँ 2 नदियों का मिलाप होता है। अच्छा। जैसा मन नदी का और या महेश नदी का मिलाप यहाँ नहर बीच में होता है। हाँ। तो ये दोनों का संगम यहाँ में होता है। तो आपकी जो क़यामगाह थी, आप या वज़ू के लिए, गुस्ल के लिए जो है कुआं में नजर आता है, तो वहाँ जाया करते थे हजरत नहर के में। और ये जो मस्जिद है, ये मस्जिद के 2 इर्द गिर्द में 2 टाके थे। एक टाका आपको वहाँ नजर आया होगा और एक टाके को बंद कर दिया गया। अच्छा। तो 2 टाके थे हजरत के 2 बारगाह के अंदर। हजरत जो है औरंगाबाद साइड के जो है तो नहर के यानी नहरी एक गांव है औरंगाबाद साइड में। तो वहाँ के बुजुर्ग है ये। तो यानी बालापुर के अंदर आके इन्होंने तीनों सुन्नियत का काम किए, तीनों इताअत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत फरमाबरदारी करके लोगों में दीन पहुँचाया, दीन तबलीग की। और हजरत यहाँ ही आरामगाह है। हजरत जो है तो नहर के हैं। अच्छा। रहने वाले नहर के, तो आपको नहरी कहा जाता है। हाँ, नहरी। आपको नहरी कहा जाता है। हमने सुना है कि नहरी मस्जिद, नहरी तो मतलब है कि यहाँ पर मैं उस गांव की निस्बत से ही मस्जिद का नाम दे दिया गया है। अच्छा। हजरत नहर से आए हुए। नहर एक गाँव है, मतलब नहर एक गांव है, हजरत वहाँ से आए हुए। तो नहरी करके आपके लकब के आगे भी नहरी है। अच्छा। आप चाहे तो पाटिया पे भी हजरत की देख सकते हैं। ये 2 बुजुर्गों के बाटिया जो है तो पानी में कभी मतलब
जैसे जावेद भाई ने हमें बहुत अच्छी जानकारी, नायाब जानकारी बताई और बहुत सारे किंवदंतियों से पर्दा उठाया है इस एपिसोड के अंदर। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि हमें यहाँ पर में कुछ पुराने कंस्ट्रक्शन के ये चूना और ये घानी का जो पहले के ज़माने में जो कंस्ट्रक्शन हुआ करता था, हमें यहाँ पर में बहुत बड़ी की दीवार नज़र आ रही है। मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाएं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर में एक ये नज़र आ रहा है। मैं कैमरामैन को कहूँगा इधर आकर दिखाएं। देखिए ये हमें एक चबूतरा नज़र आ रहा है। जावेद भाई जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि हमें यहाँ पर में कुछ दीवार का हिस्सा नज़र आ रहा है और यहीं पर में नदियों का संगम होता है। जैसे 2002 के अंदर पूर आया था, बालापुर के लोग खूब जानते हैं कि उस वक्त मैं करीब 4 या 5 साल का होगा। मुझे भी होश है कि बालापुर में उस वक्त में बहुत सी नुकसान हुआ था। हो सकता है ये उससे पहले भी 2 सैलाब बहुत बड़े बड़े आ चुके हैं, उन सैलाब के अंदर भी ये बहुत खानका तबाह हो चुकी है, मगर मस्जिद आज भी कायम है। ये अल्लाह का करिश्मा है कि मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह खुद अपने घर की हिफाजत करता है। देखिए हमारे यहाँ पर में हम जैसे देख पा रहे हैं, इसके बारे में बताइए। ये हजरत की खानगा कायम थी। अच्छा, तो दीवारें आप जैसे देख रहे हैं पस्त हो गई है, यानी टूट चुकी है। तो इसका मतलब औरस चौरस ही मतलब कितना वसी हुआ करता था, कुछ अंदाजा आपने जैसा अपने आपके दादाओं से जो सीना बसीना चले आती है कि हजरत की जो खानगा यही थी, आप यहाँ आराम गाह करते थे। तो आपकी जब विसाल मुबारक हुई तो तकरीबन विसाल को भी 250 साल के लगभग में हो चुका है। तो आपकी विसाल हुई थी तो आपको दफन भी जो आपकी खानगा में की गई। अच्छा, मतलब जो दफन की जब खानका हमारे बुजुर्गों से जो है यानी सीना बे सीना जो बातें आई हुई है बुजुर्गों की, तो वही हमने सुना है। तो हजरत के आप दीवाला देखिए, एक आटिया के अंदर पूरी दीवारें हैं, जो कहूँगा दिखाया होगा। हाँ, ये पूरी दीवारें हैं। ये पीछे वो आप देख रहे हो पूरी दीवारें हैं। चलिए मैं कहूँगा उधर चलते हैं, देखते हैं। कैमरामैन को कहूँगा करीब आकर। पूरी दीवारें हैं, ये आप देख रहे हैं। तो उधर काटिया में भी दीवारें हैं पीछे से। और तकरीबन जो है तो हजरत की बारगाह में कई यानी असकार में चला करता था। ये दीवारें पूरी। कैमरामैन को कहूँगा इधर आकर दिखाए। देखिए ये हमें पुराने ज़माने के यहाँ पर में पत्थर नजर आ दीवारें रही है। ये दीवार उधर उस वक्त हमें जाती हुई उस जानिब नजर आ रही है। तो जावेद भाई आप ये क्या कह सकते हो कि ये पुराना कब्रिस्तान भी हो सकता है? ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है। अच्छा, हजरत के तकरीबन यहाँ पर जब बस्ती कायम थी, अच्छा, तो उस वक्त से कब्रिस्तान कायम है। तो ये कब्रिस्तान में ही आपकी जो खानगा थी, यानी आप उस वक्त में मुगल सल्तनत के लोग जो बादशाह हुआ करते थे, तो हजरत की बारगाह में यानी खानगा कायम की गई थी। मगर तबाही यानी सैलाबों की तबाही बर्बाद होने की वजह से ये पस्त हो गई, यानी गिर चुकी है। देखिए हमारे साथ में जावेद खान साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दिखाई है। चलिए हम मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए जगह, किसी नए मुकाम पर। अस्सलाम वालेकुम। मैं जो पूछूंगा हो गया शुरू, क्या बोलूँगा? देखिए ये मन नदी और महेश नदी का संगम है। जैसे जावेद खान रज़ा साहब ने हमें एक करामत बताई कि हजरत अपने पेट को चाक किया करते थे, उसको यहाँ पर में आकर धोया करते थे। ये वही जगह है। और भी बहुत सारी करामतें हैं। जावेद साहब खान का नक्शबंदिया हमने जहाँ पर में हजरत इमामुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती उल करनैन रहमतुल्लाह अलैह के साथ भी उनके बहुत सारे वाक़यात पेश आए। उन्हीं के बारे में जावेद साहब इस वीडियो के अंदर हमारे साथ में बने हैं, तो वो जानकारी बताना चाहते हैं। सैयद जलाल शाह रहमतुल्लाह रिज़वान का जो आपको मज़ार शरीफ भी बताया गया है और मस्जिद के कुतुबों में जो नाम लिखा है वो भी बताया गया है। तो आपके मामला जो है हमने आपको करामत भी बताया। जो करामत है हजरत की, तो ये जो 2 नहरें हैं, तो ये 2 नहरों के बाद में ये संगम होता है। तो इस संगम पे आपका जो है तो पेट काट करके आपको जो करामत बताई गई, तो आप यहाँ पर अच्छा साथ किया करते थे। अच्छा, यहीं पर। और खानका नक्शबंदिया के आपने हजरत मुफ्ती उल करनैन उनका नाम भी जिक्र किया है, तो उनके ताल्लुक से बताइए। देखिए हमारे जो ख़ानदान के बुजुर्ग हैं इमाम खान अलैहि रहमतुल्लाह, जिसकी मज़ार मुबारक भी आपको बताई गई है, तो ये खानगाह नक्शबंदिया के अंदर खिदमत किया करते थे। अच्छा, तो अब हमारे बुजुर्गों से सुना है कि खानगाह नक्शबंदिया के अंदर खिदमत किया करते थे। तो मुफ्ती उल करनैन अलैहि रहमतुल्लाह जो हाजी में सरकार अलैहि रहमतुल्लाह के दादा जान। अच्छा, तो आपने इरशाद फरमाया, उस वक्त के अंदर आपसे पूछा गया है कि ईमान का मसला जो है तो यानी मुकम्मल किसका है। फरमाया गया है कि बालापुर के तमाम ईमान वालों को एक तराजू में रख दिया जाए और इमाम खान के ईमान को एक तराजू में रख दिया जाए। फिर भी इमाम खान के
ईमान के मुकाबला पूरा बालापुर के ईमान वाले नहीं कर सकते। अच्छा, ये हजरत मुफ्तीउल करनैन अलैहि रहमतुर रिजवान ने उनके इल्म और उनके तकवे को मतलब बयान किया है इस सुनहरे अल्फाजों के अंदर। तो देखिए, ये होता है निस्बत और बुजुर्गान दीन वलील्लाह की सोहबत का, कि एक वली ही वली को पहचान सकता है। तो उन्होंने उनकी शान में ऐसे कुछ अल्फाजों में उनकी शान को लिखा है। ये आपका मतलब आप जानकारी बताना चाहते हैं। आपने कहा तो जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं कैमरामैन को कहूँगा जूम करके दिखाए। ये खानका कादरिया हमें यहाँ से नज़र आ रही है। हमें एक एपिसोड इस खानका पर भी बनाएंगे। ठीक है, वीडियो यहाँ पर ख़त्म करें अपन। यहाँ पर में उर्स होता है। जी उर्स होता है। अब जैसा हज़रत जलाल शाह अलैहि रहमतुल्लाह की तकरीबन 250 साल हो गए, मगर उनका तो पता नहीं कि उर्स की गली उर्स की तारीख कौन सी आती है। अच्छा, तो हज़रत बादशाह सरकार का भी उर्स मुबारक हमें पता नहीं है। गुलाम मोइनुद्दीन साहब का जो है तो रज्जब में 14 तारीख को 14 रज्जब को आता है क्योंकि ये अभी के बुजुर्ग हैं। अच्छा, और हमारे दादा जान जो है तो इमाम खान अलैहि रहमतुल्लाह 6 शव्वाल मुबारक साल मुबारक हुआ था, तो हज़रत का 6 शव्वाल को उर्स निकाला जाता है। मतलब आप ही के घर से? हमारे घर से निकाला जाता है। अच्छा, हमारे वालिद बुजुर्गान गुलशेर खान साहब निकालते हैं 6 शव्वाल को। अभी इस बार में भी अभी बरोज़ जुमेरात को भी संदल बाद नमाज असर सुन्नत के मुताबिक यानी मिलादो महफिल के साथ में निकाला जाता है। हमारे बुजुर्गों ने आज तक के जो निकाले हैं तो सुन्नत के मुताबिक ही निकाले, क्योंकि इसलिए कि बुजुर्गों के अदब बेहतर है। बेशक, क्योंकि अदब से जाएंगे तो वहाँ फैज़ भी हासिल होंगे। बेशक। कई बुजुर्गों की बारगाह में लोग बेदबी से जाते हैं संदल पेश करने के लिए, तो वो हमारे पास। देखिए, हमारे साथ में जावेद खान साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दिखाई है। चलिए हम मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए जगह किसी नए मुकाम पर। अस्सलाम वालेकुम।